Good morning, welcome to everyone once again. Today in this class we are going to study about clause, means the clauses, adjective clause, restrictive and non-restrictive adjective clause. First of all, once again I want to make you aware about definitions of the clause. A clause is a group of words that has both a subject and a predicate. Every complete sentence is made up of at least one clause. क्लॉज में बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है. बहुत सारी चीज़ों का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, प्रेडिकेट में सिंपल, कंपाउंड, सब्जेक्ट में सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स और क्लॉज. Michael bought a new computer. One sentence and one clause. Michael bought a new computer. But he still has the old one. One sentence, two clause. Although he still had the old one, Michael now has a new computer. Means one sentence, two clause. ध्यान से देखिए इसको. राम के पास आम है. राम के पास एक आम है, उसने दूसरा लेकर आया. राम के पास आम होते हुए भी उसने एक दूसरा आम लेकर आया. तो तीसरे वाक्य में राम के पास ऑलरेडी दो ही आम है, दूसरे में भी दो ही है. लेकिन पहले क्या हुआ? ऑल्दो ही हैज़ हिज ओल्ड वन. यद्यपि उसके पास होते हुए, यानी पहले क्लॉज का यूज किया गया. देन आफ्टर हिज न्यू कंप्यूटर की बात की गई, सब्जेक्ट की बात की गई. माइकल बॉट अ न्यू कंप्यूटर, वन सेंटेंस वन क्लॉज. कैसे क्लियर हो रहा है? तो माइकल बॉट अ न्यू कंप्यूटर. हु बॉट अ न्यू कंप्यूटर मीन्स द माइकल, मीन्स वन सब्जेक्ट इज देयर. बॉट इज अ वर्ब. A new computer is the predicate. Michael bought a new computer, but he still has the old one. Michael is the noun. Bought is a verb. A new computer working as a predicate, but subject for the Michael. But he still has the old one. But is the preposition connecting to he is a pronoun. Noun pronoun को जो relation बताया preposition. Still has the old one. यद्यपि उसके पास एक है. कंफ्यूज नहीं होना है. बट प्रीपोजिशन है, इसलिए यहाँ कनेक्टर है, ये कंजंक्शन है रियली. बट हियर बट इज वर्किंग एज अ प्रीपोजिशनल बिकॉज इट इज कनेक्टिंग टू नाउन एंड वन pronoun. Although he still has his old one, Michael now has a new computer. An independent clause or the main clause makes sense by itself. It expresses a complete thought. Michael bought a new computer. One independent clause. Michael bought a new computer, but he still has the old one. Two independent clause. Although he still has the old one, Michael now has a new computer. A dependent clause or subordinate clause does not make a sense by itself. It does not expresses a complete thought, although he still has his old one. Without the independent clause, a dependent clause is a sentence form. जब भी हमारा आश्रित वाक्य होगा, आश्रित मतलब कैसे? मैं जा रहा हूँ राम के घर. मैं जा रहा हूँ राम के घर साइकिल के द्वारा. तो मैं आश्रित हूँ किस पे? साइकिल पे. और मैं जा रहा हूँ तो मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ. और मैं उसके साथ भी जा रहा हूँ, उसके साइकिल से जा रहा हूँ, रवि के साथ जा रहा हूँ. तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया. इंडिपेंडेंट क्लॉज कभी भी प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ नहीं जुड़ सकता है. डिपेंडेंट क्लॉज कैन कम बिफोर और मिडल ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड रियली इट वर्क्स एज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. ऑब्जेक्ट्स में ये चीज़ होना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स की बात है. देखिए यहाँ क्या दिया है. With relative pronoun we can imagine that how we can
finalize the given structure of the given sentence. Okay, with a relative clause. रिलेटिव क्लॉज कैसे कैसे पता चलेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव क्लॉज है, वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है? तो उसके सेंटेंस के आधार पे, उसके गिवन फॉर्म्स के आधार पे, उसके दिए हुए क्या प्रीपोजिशनल के आधार पे. Now further we can see here that in the given sentence we can restrict the word. शब्दों को कैसे हम चेंज कर सकते हैं इसमें दिया हुआ है. With a relative pronoun and adjective clause generally begins with a relative pronoun. Adjective clause जो ऊपर लिखा है फर्स्ट लाइन कि an adjective clause generally begins with a relative pronoun. relative pronoun जो मैंने आपको बता दिया है that which, who, how, whose, जो कि ये क्या है इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी है ना. क्वेश्चन पूछने का काम करेगा तो एडवर्ब जब वर्ब के साथ आए और जब ये हमारा प्रोनाउन है तो डेफिनेटली इट विल कम विथ नाउन. दैट कनेक्ट्स द क्लॉज टू द नाउन और अ प्रोनाउन इट मॉडिफाइज and the relative pronoun shows the relation between the clause and the antecedents. There is the mountain that we are going to climb. Antecedent means mountain that connects the clause we are going to climb that with the antecedents. My blue tennis shoes which used to be my mom's were under the bed. Antecedents क्या है? shoes. And that which is a pronoun. which क्या है? pronoun है. replacing shoes किसको रिप्लेस कर रहा है? shoes को. in the dependent clause shoes used to be mom's. आश्रित है, किसकी हुआ करती है? moms की. and relating it to the object of the independent clause. The relative pronoun has a grammatical function in the given sentence. As see here, there is a mountain that we are going to climb. That is the direct object of the infinite to climb. My blue tennis shoes used to be my mom's. Under the bed. Were under the bed. Which is the subject of the verb used daily. Who was late again today? Sits next to me in English. Who is the subject? Who is the subject of the independent clause? See here, I am showing the example. Here it is. When choosing between who and whom, considered how the pronoun is used in the dependent clause, not the independent clause. Who और whom दोनों एक साथ है, एक ही अर्थ होता है. किसके द्वारा, कौन, तो किसके द्वारा और कौन, किसके द्वारा मतलब राम के द्वारा, कौन तो राम. ये मेन फैक्टर है कि हमें समझना है कि यूज़ कैसे होता है, इसकी बात क्या होती है, इसकी फ्रेग्रेंस क्या हो सकती है, इसकी डिलेमा क्या हो सकती है, इसकी पोजीशंस क्या हो सकती है. और ये तभी हम कर सकते हैं जब इसको हम मॉडिफाई करेंगे. प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होते हैं वो वर्ब के साथ आते हैं. मैं आपको थोड़ा देर के लिए बताऊं, वर्ब में चलते हैं कि द नेबर्स कैट मियो लाउडली, एक्शन है. यू जस्ट लिसन द एग्जाम्पल. यू हियर द मियो एंड यू मे सी द कैट ऑन द टॉप. बिल्ली वहाँ थी, बिल्ली घर के पास थी. तो बिल्ली वहाँ थी और घर के पास थी. तो कहाँ थी? तो कोई जगह होगा, कोई प्लेस होगा, या घर था या दरवाज़ा है, जहाँ भी हो बिल्ली. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ नाउन और प्रोनाउन डायरेक्टली रिसीव नहीं कर सकता है किसी भी एक्शन वर्ब को. यानी जो भी हमारा एक्टिव वर्ब है उसमें काम नहीं करेगा, उसमें ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब की बात आने लगती है. तो ट्रांजिटिव वर्ब वही कहता है कि इंडिपेंडेंट, मेरे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं ट्रांजिटिव हूँ, और मेरे पास मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो मैं ट्रांजिटिव हूँ, नहीं है तो इंट्रांजिटिव. इंट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट. इंट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है.
and the meaning is complete without one complete given finite word. He hikes, cow grazes, we play. तो इसमें पता है वी प्ले हम खेलते हैं, जो कुछ भी खेले, लेकिन अर्थ तो क्लियर है। हम जाते हैं, हम आते हैं, इससे कुछ नहीं पता चल रहा है कि हम कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। सो नेक्स्ट more preposition in the next class. Thank you. Have a nice day.